previous lecture, student, we discussed about the laws of chemical combination, that is law of conservation of mass, law of constant proportion, concept of atomic number, concept of atomic mass. Then we discuss about what are molecules, atomicity, and how to find out molecular mass. Now these concepts are very much clear to you. Today we are going to discuss about the Dalton's atomic theory. And this theory, the postulates of this theory are very, very important for 3 to 5 marks. इसके ऊपर 3 to 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं ऑन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो स्टूडेंट, ये जो हमारे 6 पोस्टुलेट्स है, इनका मीनिंग हमको आज समझना है कि व्हाट दिस 6 पोस्टुलेट्स आर. अगर आप पोस्टुलेट समझ जाते हैं सो यू विल बी एबल टू राइट इन अ सेंटेंसेस. अदरवाइज फिर बच्चे उसको रट्टा मारते हैं एंड देन राइट, सो दैट इज मीनिंगलेस. सो एक एक सेंटेंस का मीनिंग आज पढ़ेंगे. दैट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. रिमेंबर द हेडिंग, Dalton's atomic theory. Children, as I told you earlier, what Dalton said? Dalton said that the atoms are indivisible. Atoms are indivisible, means which cannot divide further. But there were 2 scientists who discovered the protons and the electrons, that is the subatomic particles of the atom, and proved that atoms are divisible. Accordingly Dalton, atoms are indivisible, which we cannot divide. But these 2 scientists proved Dalton wrong and said that atoms are divisible. Atoms are divisible, means which can divide further into subatomic particles like proton, electrons, and neutrons also. So let's discuss about the first postulate of the Dalton. What Dalton said about an atom. ये सारे जो postulates है ना, ये atoms के बारे में है जो कि Dalton ने दिए हैं. So that we will discuss. The first postulate is very easy, children. See what is written. All matter is made up of very tiny particles called atom. You can write the same definition for the atom. Okay, you can write the same for the definition of an atom. What are atoms? All matter is made up of a very small and tiny particles, so they are called atoms. Look at the second postulate. Atoms are indivisible particle. Children, just now I told you, Dalton said atoms are indivisible, means which cannot divide further. But other scientists proved this statement wrong. But then too, if the postulates of the Dalton's theory are asked, you are expected to write this statement in the postulates of Dalton. जबकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फिर भी अगर डाल्टन की थ्योरी पूछते हैं 3 to 5 मार्क्स के लिए, तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि डाल्टन ने ये बताया है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम्स आर indivisible particle, means which we cannot divide further, but we can divide it, which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. देखो बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें के जो एटम्स है उनकी सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है. ओनली द एटम्स गेट रीअरेंज्ड, बट एटम ना ही क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं. अब इसका एक एग्जांपल आपको बताऊंगी इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए.
Listen now. For example, I am writing one equation here. Zinc reacts with hydrochloric acid. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है और सारे बच्चे जवाब देंगे. Now in this reaction, I have taken two reactants, children. One is zinc and another is hydrochloric acid. Now you tell me, in the product side, don't tell me the products. कौन से प्रोडक्ट बनेंगे वो मत बताओ, मुझे ये बताओ कि ये जो एटम्स हमने यूज किए हैं रिएक्टेंट्स में, जैसे कि जिंक, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके अलावा कोई एटम रहेंगे प्रोडक्ट साइड में? टेल मी यस और नो. इनके अलावा और कोई प्रोडक्ट रहेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में? यस. कौशल का कहना है नहीं, अनय का कहना है नहीं, अर्नव, आर्यन, इनका भी कहना है नहीं, मोहित का भी कहना है नहीं. वेरी गुड. ओके, राइट. वेरी गुड मधुर. वेरी गुड राघव. यस. So what I mean to say, children, the same elements will be there in the product side. If I write zinc plus HCl, the products will be there with the same element only. अब रिएक्टेंट साइड में कार्बन नहीं है तो प्रोडक्ट में कार्बन आ जाएगा क्या कहीं से टपक के? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. ऑक्सीजन आ जाएगा कहीं से? नहीं. नाइट्रोजन आ जाएगा कहीं से? नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जिंक प्लस HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन. देखो वही है, यहाँ पर भी जिंक है, यहाँ पर भी जिंक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन. मतलब क्या? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है सो उसमें नए एटम्स क्रिएट नहीं होते हैं, ना ही इसमें के एटम जो है जो रिएक्टेंट साइड में यूज हुए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि चलो भाई जिंक डिस्ट्रॉय हो गया, प्रोडक्ट में जिंक मिला ही नहीं, ऐसे नहीं होगा. हाइड्रोजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, प्रोडक्ट साइड में है ही नहीं. क्लोरीन डिस्ट्रॉय हो गया, प्रोडक्ट साइड में है ही नहीं. ऐसा नहीं होगा. जो इलेमेंट रिएक्टेंट साइड में है वही इलेमेंट प्रोडक्ट साइड में भी होंगे. इट मीन्स atoms are neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. अब देखो क्या लिखा है, atoms are indivisible which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है ये और कौन से स्टेटमेंट के सेम दिखता है हमको? दिस स्टेटमेंट रिजेंबल्स which statement? Tell me fast. The statement which I have highlighted is resembles with which statement? Yes, very good, Anay. Very good. I'm waiting for more answer. Do you remember, children, this statement resembles which statement? This statement resembles law of conservation of mass. Yes, law of कंजर्वेशन ऑफ मास के बराबर है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. तो वहां पर एटम के जगह पे सिर्फ क्या वर्ड है? मास, ये वर्ड है. तो ये मैंने इसलिए रिवाइज करवाया ताकि आपको दो चीजों में डिफरेंस पता चले. इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव टू वर्ड यूज मास इंस्टेड ऑफ एटम. While in Dalton's atomic theory, the second postulate, we use the word atom, while the other statement is same, like a law of conservation of mass. Okay? तो इसका मतलब एटम है, एटम के बारे में ही लिखना. यहाँ पे गलती से मास मत लिख देना और वहां पर गलती से एटम मत लिख देना. फॉर दिस आई वॉन्ट यू टू बी अलर्ट ऑलवेज. ओके स्टूडेंट? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट that what this statement indicates. Atoms cannot be created nor be destroyed. देखो बच्चों, ऐसा कभी नहीं होगा कि रिएक्शन में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो इनका प्रोडक्ट तो आपको पता ही है कि वाटर ही बनने वाला है. तो ऐसा कभी नहीं होगा
यहाँ पर वाटर के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, मतलब हाइड्रोजन कहाँ गया फिर? अगर प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन ही नहीं तो हाइड्रोजन कहाँ गायब हो गया? नाइट्रोजन और कार्बन रिएक्टेंट साइड में नहीं है, फिर वो कहाँ से आ टपके? ऐसा कभी नहीं होता है। Those elements which are present in the reactant side are only present in the product side. This is the meaning of this statement, children. Okay, let's go for the next. Atoms of given element. Atoms of given element are identical in mass and chemical properties. देखो ये बात समझ लो, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्टेटमेंट की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इसकी मीनिंग ही नहीं पता तो फिर रट्टा मार के लिखने से कोई फायदा नहीं है। देखो क्या लिखा है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। अब सबसे पहले आपको एलिमेंट और एटम में फर्क समझना चाहिए। सो देखो, अब मुझे अगर कहना है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट तो मैं कैसे लिखूंगी? यहाँ देखो बच्चों, सबका ध्यान होना चाहिए। दिस इज वन एटम ऑफ जिंक, दिस इज अगेन वन एटम ऑफ जिंक। ये पड़ा है लेबोरेटरी में, लैबोरेटरी में जिंक, और ये जिंक पड़ा है मेरे घर में। फॉर एग्जाम्पल दिस जिंक ग्रैन्यूल इज लाइंग इन माई होम। अब मुझे बताओ कि जो लेबोरेटरी में जिंक है और जो जिंक मेरे घर में है, क्या दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे? टेल मी, दोनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे? नहीं। यस, वेरी गुड राघव, वेरी गुड आर्यन। यस, दोनों के प्रॉपर्टीज सेम होंगे बच्चों, दोनों के प्रॉपर्टीज सेम होंगे। क्यों सेम होंगे बच्चों? बिकॉज दिस टू एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट। ये जो दो एटम है ना, ये एक जिंक का एटम और ये दूसरा जिंक का एटम, दे बोथ आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ये एक ही एलिमेंट के हैं। तो एलिमेंट की बात समझ में आई होगी। So atoms of same element means what? Here I have hydrogen. Here also I have hydrogen. Here also I have hydrogen. So these are the atoms of hydrogen only. So वो हाइड्रोजन कहाँ का भी हो, वो केमिकल रिएक्शन में बनने वाला हाइड्रोजन हो, या बलून में का हाइड्रोजन हो, या एटमॉस्फेयर में का हाइड्रोजन हो, उनकी सबकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। और एक एग्जांपल से बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, ये वाटर हमारे पास टैप वाटर है जो हमारे घर में आता है। ये दूसरा वाटर है, ये वाटर भाई सी वाटर है, सी वाटर। मेरे पास और एक टाइप का वाटर है जो कि रेन वाटर है। अब और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी बच्चों। अब ये जो हमारे पास तीन अलग अलग वाटर के सैंपल है, इनमें जो एटम्स है, एटम्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्या ये एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग वाटर में अलग अलग होगी या सेम होगी? सेम होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये प्रॉपर्टी सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि हाइड्रोजन टैप वाटर में का हो या हाइड्रोजन सी वाटर में का हो या हाइड्रोजन रेन वाटर में का हो, हाइड्रोजन तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट है ना, वो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही रहेगा ना, वो दूसरा एलिमेंट तो नहीं बन जाएगा। सो हाइड्रोजन कहाँ का भी हो, मैंने आपको पहले ही बताया, वाटर में का हो, लेबोरेटरी में का हो या कहीं और का हो, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही रहेगा। तो उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी बच्चों। फिर आप बोलोगे मैम टैप वाटर तो अलग होता है, सी वाटर तो खारा होता है, रेन वाटर तो और भी प्योर होता है। होने दो, क्योंकि उनमें दूसरे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है बेटा। जैसे कि सी वाटर में बच्चा सॉल्ट है, वहां पर अलग अलग सॉल्ट से, इस वजह से ओवरऑल वाटर की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होगी ना। आप टैप वाटर यूज करो या सी वाटर यूज करो या रेन वाटर यूज करो, तीनों भी तो फायर को एक्सटिंग्विश ही करेंगे ना।
ऐसा कोई वाटर नहीं रहेगा जो फायर को इग्नाइट करेगा। हाँ, उनकी टेस्ट अलग अलग होगी क्योंकि उसमें अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, बट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी और एटम की प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और एक एग्जांपल, मेरे पास ग्लूकॉन डी है। ओके, ग्लूकॉन डी है जो मैं मेडिकल से लेके आई हूँ, जिसमें भी ग्लूकोज है, जिसमें क्या है, ग्लूकोज है। अब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में भी ग्लूकोज बनता है स्टार्च से, जो स्टार्च हम लेते हैं ना उससे भी ग्लूकोज बनता है। अब आप मुझे बताओ, जो ग्लूकोज लेबोरेटरी में है और जो ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन में है या फिर हमारे ब्लड में है, क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी या डिफरेंट होगी? दोनों भी ग्लूकोज ही है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। वेरी गुड। सो चिल्ड्रन लिसन माय सेंटेंस। No doubt, whatever the source is for a particular substance, property of a particular substance remains same. Source कोई भी हो, जैसे कि वाटर का एग्जांपल लिया, सोर्स टैप वाटर हो या सोर्स सी वाटर हो या सोर्स रेन वाटर हो, वाटर वाटर ही रहेगा, उसके प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगे। उनमें के हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही रहेंगे, उनके प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगे। तो वैसे ही मेरा कहना है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये ऑक्सीजन है जो लेबोरेटरी में बना हुआ है, ये ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में है, और ये ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस से किसी प्लांट ने बनाया हुआ है। एज दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव सेम chemical properties. I hope children the concept is very much clear to you. Okay, so अगर एटम सेम एलिमेंट के हैं तो उसके प्रॉपर्टी सेम रहेंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब समझो मेरे पास हाइड्रोजन है जो मैंने लैब में बनाया, और ये हाइड्रोजन है जो मुझे एटमॉस्फेयर में मिला। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों के मासेस सेम होंगे, इसका भी मास 1 म्यू होगा, इसका भी मास 1 म्यू होगा। ओके, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे क्योंकि दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब मेरे पास ऑक्सीजन है और मेरे पास हाइड्रोजन है, तो इन दोनों को आप क्या बोलोगे? इन दोनों को आप क्या बोलोगे? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बोलोगे बच्चों? आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट। If I have oxygen and if I have hydrogen, will I call these two atoms of same element or atoms of different element? Yes, drop me a message fast. I want a quick response. Very good, Kaushal. Very good, Raghav. Very good, Anay. Very good, Sukruta. Yes, student. They are the atoms of different element. बच्चा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, कैसे? ये देखो ना, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है ना? ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है बच्चों, ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है बच्चों। और अगर ये एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो इनके प्रॉपर्टी मैच करेंगे क्या? नहीं मैच करेंगे। हाइड्रोजन का मास 1 म्यू होता है, तो ऑक्सीजन का मास हमने लर्न किया है टेबल नंबर 3.2 से 16 म्यू होता है। वैसे अगर मैंने नाइट्रोजन ले लिया तो नाइट्रोजन का मास क्या होता है? 14 म्यू होता है। तो एटम्स अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो उनके प्रॉपर्टीज भी कैसे रहेंगे बच्चों? डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, है ना? सो आई होप दिस पोस्टुलेट इज आल्सो क्लियर टू यू। क्या लिखा है देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर एक एलिमेंट में कार्बन की बात कर रही हूँ और दूसरा एलिमेंट अगर मैं नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ तो दोनों के मासेस अलग अलग होंगे, दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर भी कार्बन की बात करूंगी, अगर मैं यहाँ पर भी कार्बन की बात करूंगी, सो दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही होंगे। ओके स्टूडेंट, सो आई होप दिस
postulates are very much clear to you. आगे चलते हैं. See, atom combines in a ratio of a small whole number to form compound. क्या लिखा है? Atoms combine in the ratio of small whole number to form compound. So this statement directly resembles law of constant proportion. ये स्टेटमेंट का डायरेक्ट मीनिंग क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. मतलब आप कोई भी एक सब्सटेंस ले लो, उस सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनके फिक्स रेशो से ही कंबाइन होते हैं. फिक्स रेशो भी किसका रेशो? किसका रेशो? उनके नंबर का रेशो. नंबर, वोल नंबर. मतलब अगर मुझे वाटर बनाना है तो वाटर में हाइड्रोजन के 2 ही एलिमेंट होंगे और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट होगा. अगर मैंने गलती से लिख दिया H2O2, H2O2 मैंने गलती से लिख दिया, तो क्या ये वाटर है? टेल मी फर्स्ट. अगर गलती से मैंने H2O के जगह पे H2O2 लिख दिया, तो क्या ये वाटर है? नहीं, ये वाटर नहीं है. इसका नाम चेंज हो जाएगा. ये दूसरा ही कंपाउंड है. मतलब क्या कि कोई भी कंपाउंड हो, उसमें जो एलिमेंट्स के नंबर्स होते हैं ना, वो फिक्स होते हैं. अगर मुझे बोलना है बच्चों कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में 6 ही कार्बन होंगे, 12 ही हाइड्रोजन होंगे और 6 ही ऑक्सीजन होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड. दुनिया में मैं कहाँ पे भी बात करूंगी अगर ग्लूकोज की, तो ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. IUPAC के रूल के हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेम सब्सटेंस होगा, इसका सेम फॉर्मूला होगा. अगर मैं जलगांव में रह के अगर ग्लूकोज की बात करूंगी तो सेम फॉर्मूला. अगर मैं अमेरिका में जाके ग्लूकोज की बात करूंगी, सेम फॉर्मूला. अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके बात करूंगी, वहां की भी ग्लूकोज का सेम ही फॉर्मूला होगा. मतलब क्या है? Atom combines in a ratio of small whole number to form a compound. Now this statement resembles, actually these two, they resembles with the law of constant proportion as well as conservation of mass, क्योंकि अल्टीमेटली उसका मीनिंग वही होगा. आगे देखो, the relative kind of atoms are constant in given compound. The relative number and kind of atoms are constant in a given number. तो जो मैंने मीनिंग आपको बताया अभी, वो ज्यादा इस स्टेटमेंट से रिजेंबल करता है. और जो रेशो वाला है ना, ये स्टेटमेंट दैट रिजेंबल्स विद द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. मतलब कैसे? यहाँ देखो, एक सब्सटेंस है मेरे पास वाटर. तो ये जो वाटर है ना बच्चों, इसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं वो फिक्स रेशियो से कंबाइन होते हैं. कौन सा रेशियो है वो हमने फाइंड आउट किया है. देखो, मैं नीचे आपको वापस लिख के बताती हूँ. वाटर है हमारा क्वेश्चन. हमारे पास 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का मास 1, लेकिन कितने हाइड्रोजन है? 2. तो मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन ऑक्सीजन का मास क्या है भाई? 16. आगे करो, 2 अपॉन 16 मतलब 1 अपॉन 8. तो बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे टू फॉर्म वाटर, तो वो इसी रेशो में कंबाइन होंगे, 1:8 में. कौन सा रेशो? हाइड्रोजन एस टू ऑक्सीजन 1:8 के रेशो में ही वो कंबाइन होंगे. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. मतलब क्या कि अगर 1 ग्राम मैंने हाइड्रोजन लिया है तो मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा उसको कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए. तो मेरे पास बनेगा 9 ग्राम ऑफ वाटर. ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है इन अ टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो वो स्टेटमेंट इससे रिजेंबल करता है. और ये जो मैंने लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ा बच्चों, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. कोई भी एक कंपाउंड का अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड
बच्चों ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन का नंबर फिक्स रहेगा, दैट इज 1 कार्बन, और ऑक्सीजन के नंबर फिक्स रहेंगे, दैट इज 2 ऑक्सीजन। 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिला के क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कुछ भी हो, वो किसी सब्सटेंस के बर्निंग से बना हो, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज किया हो बाय रेस्पिरेशन, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड किसी और रीजन से बना हो, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी सोर्स हो, फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चों। फॉर्मूला सब्सटेंस का चेंज नहीं होता है। वैसे ही अगर मैं वाटर की बात करूंगी तो वाटर जलगांव में मिलने वाला हो या अमेरिका में मिलने वाला हो, रेन से मिलने वाला हो, सी वाटर से ऑब्टेन होने वाला हो, या फिर प्लांट ने रिलीज किया हुआ हो बाय ट्रांसपिरेशन, वाटर कोई भी हो, उसमें हमेशा हाइड्रोजन 2 के नंबर में होंगे और ऑक्सीजन 1 के नंबर में होगा। ये नंबर का रेशो है बच्चों, तो ये भी कांस्टेंट रहता है। एक कंपाउंड अगर हमने ले लिया तो उसके काइंड मतलब किस टाइप के आइटम है और कितने नंबर में है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट नेवर चेंजेस। अगर गलती से आपने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला C2O2 लिख दिया, नहीं चलेगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि उसका फॉर्मूला है CO2। CO3 भी लिख दिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये कार्बोनेट है। तो कोई भी एक सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला मतलब उसके नंबर ऑफ एंड काइंड ऑफ आइटम जो होते हैं दैट आर फिक्स्ड, दैट इज कांस्टेंट, दैट नेवर चेंजेस। So this is about the postulates of the Dalton's atomic theory. Okay, now I hope children the postulates and their meanings are very much clear to you, very crystal clear to you. Now I think you all are able to write and learn the 6 postulates of the Dalton atomic theory. Is it children? Am I talking correct? Am I talking correct? Are you able to write and learn the postulates of the Dalton's theory now? Now there is no need to mug up the things. Okay, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अभी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अभी एक दो बार पढ़ लिए तो अपने आप लर्न हो जाते हैं। फर्स्ट 4 पोस्टुलेट्स तो बहुत ही इजी है, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना है, वर्ड्स गड़बड़ नहीं होने चाहिए। ओके बच्चों, तो अब ये जो हमने 6 पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, यस थैंक यू, अब हमने जो 6 पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, ये 6 पोस्टुलेट्स पे हमारे ब्लॉक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन से अब हम वो डिस्कस करेंगे। Yes, these are these 2 questions children. See, ये तो ऊपर का आपका न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व भी किया है ऑलरेडी, पहला वाला। ये आप घर में सॉल्व करो, आज कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताओ, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का आंसर चिल्ड्रन, फटाफट बताना है मुझे, सिर्फ नंबर डालना है। ओके, सिर्फ नंबर डालना है। Which postulate of Dalton's atomic theory is a result of law of conservation of mass? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जैसा कौन सा स्टेटमेंट है? यस, वेरी गुड अनय, वेरी गुड मधुर, नाइस चिल्ड्रन, वेरी नाइस। नाउ सेकंड, which postulates of Dalton's atomic theory can explain law of definite proportion? मतलब ही law of constant proportion। definite का मतलब क्या होता है? constant, constant। कौन सा postulate? which postulate resembles? yes, very good, absolutely correct। okay, so ये 2 आपको सॉल्व करने हैं, राइट? वो पोस्टुलेट्स आपके सिर्फ नंबर लिखने नहीं है अभी पेपर में, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे नहीं लिखना है कि हाँ भाई सेकेंड पोस्टुलेट, हाँ भाई फिफ्थ सिक्स्थ पोस्टुलेट, ऐसे नहीं लिखना है आपको।
आपको पोस्टुलेट ही लिखना है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना है, तब जाके आपको वहां पे 1 मार्क मिलेगा. ओके, सो टुडे व्हाट वी डिस्कस, टुडे वी डिस्कस अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन डिटेल, जो कि 5 मार्क्स के लिए आती है. ओके, नाउ चिल्ड्रन, इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me.